Hello and welcome to the Glad Possible YouTube channel. Now, before we start off with the important news of the day, I'd like to talk about two very practical problems that an aspirant faces and what is the solution to that problem. So, the very first problem that we have in our entire journey of preparation is what is important, right? एक न्यूज़पेपर में से कौन सी चीज़ें important हैं और कौन सा आर्टिकल important है और उसमें से भी what do we have to learn. The solution to that problem is the daily newspaper analysis. Now, at the very onset, I'd like to tell you कि जो भी मैं बोल रही हूँ, मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी that anything is the substitute of reading the newspaper. Reading the newspaper is the most important thing that you need to do, not even with respect to your competitive examinations in life. अब वो मैं धार्मिक कथा नहीं सुना रही हूँ, but it's actually that. Secondly, your paper, which is CLAT and AILET, is inherently a reading-based paper. And a reading-based paper will always require your reading speed to be impeccable. And how do you increase your reading speed then? You read. So you can read fictional storybooks and that might help you in your English and your vocabulary, and I'm not denying that. But well, it's not going to help you in your general knowledge and current affairs. And so for that, nothing can be the substitute of a newspaper. तो पहली बात तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. अब उस न्यूज़पेपर में मुझे तो 5 घंटे लग रहे हैं मैम, मुझे तो 4 घंटे लग रहे हैं, मेरे को तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है. इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है? यू सी द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, स्किम थ्रू इट एंड यू सी, अच्छा ठीक है, दीज आर द न्यूज़ दैट अकॉर्डिंग टू द पेपर दैट वी आर गिविंग इज इम्पॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू द पेपर being the operative words over here, because an aspirant of NDA, aspirant of Bank PO, SSC, UPSC will read about something completely different than maybe an aspirant of CLAT and AILET, because we have to prepare according to what is being asked in CLAT and AILET, right? The second practical problem जिसका solution ये है is that कभी कभार हमारे जिंदगी में कुछ ऐसे events आ जाते हैं जिनके कारण हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं. Events such as examinations, जो कि शायद आप अभी दे रहे हैं, शायद the examinations are approaching. Events such as birthday parties, such as Valentine's Day, and everything is justified. Enjoy your life. And sometimes while enjoying our life, I end up, leaving the newspaper. I'm going on a vacation. Who's going to read a newspaper? ठीक है, don't read it on that particular day, but at least take out 20 minutes and sometimes even less than 20 minutes from your extremely precious time, right? And just read this, just watch it, understand it, and learn whatever is being written. And the third thing, एक्चुअली 2 प्रॉब्लम बोला, पर बोलते बोलते एक और प्रॉब्लम दिमाग में आया जो कंप्लीटली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. मुझे मैम न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही बोरिंग लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता. आई डोंट वांट टू डू इट, इट्स सो बोरिंग. It's boring because you don't understand it, right? And once you start watching the daily newspaper analysis, you'll have a basic idea as to what is happening, and then your interest will be there in a particular news. But let me tell you, आप हर एक चीज में interested नहीं हो सकते. Maybe you're interested in sports and not in environmental related news. Point is, you are preparing for an examination that's going to maybe ask you both of that. So you will have to sometimes read things that are not so interesting, but we have to read it because we have to sit for a particular paper. तो इन तीनों चीजों का solution is daily newspaper analysis. Now that we've got this out of the way, let's start off with the important news of the 14th February 2024. Now, the very first one is a very important news coming from the state of Assam, where Justice Ranjan Gogoi, who was the 46th, not 26th, he was the 46th Chief Justice of India. This man has been instrumental in giving judgments, many judgments, many memorable judgments, including the Ram Mandir Ayodhya judgment. Apart from that, he is also known for this particular thing called the National Register of Citizens. ना जब हम पढ़ते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो नाम से ही पता चल रहा है ये एक रजिस्टर है जहाँ पे किनका नाम लिखा हुआ है, सिटीजन्स का. अब मजे की बात ये है कि जब ये रजिस्टर बना था, इट वाज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1951 एंड इट वाज ओनली फॉर द स्टेट ऑफ असम. बट सिटीजन्स तो पंजाब में भी है,
हिमाचल में भी है. Why only Assam? This is because of the fact that there was a lot of influx of illegal migrants at that time from the state of Assam, and Jawaharlal Nehru was the prime minister at that time, and he sort of had a visionary approach and he said देखो यार एक register बना लेते हैं of the citizens who are sitting in Assam right now, ताकि बाद में जाके जब ये influx को हमें check करना है तो at least हमें पता है ये legitimately यहाँ पे बैठा है, ये illegitimately बैठा है. अब क्या हुआ कि ये असम में, क्योंकि ये इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स की इशू इतना ज़्यादा था कि असम के लोगों ने बोला कि देखो ये इंसान तो इलीगली आया है, इसको नौकरी क्यों मिल रही है, मेरे बच्चे को नौकरी क्यों नहीं मिल रही. तो जिस वजह से व्हेन जस्टिस रंजन गोगोई वाज द 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, he had said that we should update this particular NRC only for the state of Assam. अपडेट किया, 19 लाख से ज्यादा लोगों को इलीगल माइग्रेंट बोला सरकार ने. फिर सरकार ने बोला नहीं बॉच्ड अप एक्सरसाइज है, विल डू इट अगेन. बट एनीवे दैट इज आल्सो रिलेटेड टू हिम. So it is the highest civilian award. What is the name of the award? The Assam Vaibhav Award, right? And it was first awarded to Ratan Tata in 2021. Ranjan Gogoi की नाम तो हमने बोल दिया. And he is right now the member of राज्य सभा, जिसके अंदर फिर बच्चे बहुत ज़्यादा ये बोलते हैं कि जुडिशरी तो एग्जीक्यूटिव से अलग है, ऐसे कैसे हो सकता है. Nowhere in the constitution has it been mentioned that a retired justice cannot be a member of Rajya Sabha through nomination. In fact, once such people are members of Rajya Sabha, if this post is utilized properly, it can also lead to a lot of good changes in the judiciary, because they can sit there and they can talk about the issues that they face. Of course, it can go the other way also, but that we will discuss on some other day, preferably in an offline classroom. Yes? Okay. Let's go ahead. The next one is with respect to the Chief Election Commissioner and election commissioners in India. So we will talk about this in some time. First, let's deal with this. So कौन सी बॉडी देखती है इलेक्शंस को, काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. This is under Article 324 of the Constitution. That makes it a constitutional body. The big boss of the Election Commission of India is the Chief Election Commissioner. The very first one was Sukumar Sen. This is important. The first female Chief Election Commissioner, because of वो 4 caste, नारी, गरीब, youth and अन्नदाता जो interim budget में बात हुई थी, तो वो नारी शक्ति के अंदर they can also ask you this. So first female Chief Election Commissioner was V.S. Ramadevi. The current Chief Election Commissioner is Rajiv Kumar. Now what happened was there was this entire debate कि आप किस तरीके से इन लोगों को अपॉइंट कर रहे हो. अब पहली बात तो अपॉइंट करता कौन है इन लोगों को? EC इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को इनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट. और मेरे संविधान में ये लिखा है कि द्रौपदी मुर्मू जो भी करेगी, शी विल हैव टू अबाइड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. पर अगर प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बेसिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यार कहीं वो बायस ना हो, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक न्यूट्रल बॉडी होना चाहिए. इट शुड बी अ न्यूट्रल पार्टी. So hence what happened was there was a case called Anup Baranwal versus Union of India. In fact, इस particular body में थोड़ी देर के लिए there was just 3 member body होती है ना, तो 3 members में से 2 थे, एक था नहीं, और ओवरनाइट उसको अपॉइंट कर लिया. तो पीपल आर लाइक ऐसे कैसे अपॉइंट कर लिया, इतनी देर से तो कर नहीं रहे थे, कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल किया तुम लोगों ने, राइट? सो अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में द Supreme Court basically says that President will be the one who will be appointing these people on the aid and advice of someone from the legislature. Actually, I'm going to erase this, right? So that I get more place to write. So the President is going to appoint and the President will appoint on the basis of the advice of 3 people. One will be a representative of the legislature, one will be a representative of the executive, and the third one will be the representative of judiciary. ना लेजिस्लेचर का कौन मेंबर होगा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन. तो उन्होंने बोला लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा अगर होगा उसको इधर बिठा दो. लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए ऑपोजिशन को कितनी सीट्स चाहिए होती है? 110 सीट्स, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है. 1/10 मतलब 545, चल 552 भी अगर हम ले लें, क्योंकि 552 तो होगा नहीं, वो सैंक्शन स्ट्रेंथ है.
पर 2 एंग्लो इंडियंस तो है नहीं, ऊपर से अक्साई चिन एंड पीओके वाले एरियाज में इलेक्शंस नहीं होती। तो चलो इवन इफ आई टेक 552, उसका 1/10 हो गया 55, किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के पास ये है ही नहीं, तो फिर ये पोस्ट तो वेकेंट हो जाएगी। तो कहते ठीक है, इफ यू डोंट हैव अ स्टैट्यूटरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो भी चलेगा, जो भी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है उसका जो लीडर है उसको हम अपॉइंट कर लेंगे। तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। इफ आई टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव को कौन रिप्रेजेंट करेगा? प्राइम मिनिस्टर। एंड जुडिशरी को कौन रिप्रेजेंट करेगा? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 3 चीजें जो है ये लोग डिसाइड करेंगे एंड प्रेसिडेंट मियरली उसको अपॉइंट करेगा। चलो जी ठीक है। उसके बाद एक लंबा सा नाम बना के एक एक्ट पास होती है। इट्स कॉल्ड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट ऑफ 2023, जहां पे हमारी सरकार ये बोलती है कि ठीक है, इट्स ऑल राइट, दिस इज फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम विद दिस, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस, इसको हटा दो यहाँ से, ये नहीं रहेगा यहाँ पे आ जाएगा लॉ मिनिस्टर। बट उसके कारण तो फिर लॉ मिनिस्टर तो एग्जीक्यूटिव है, मतलब एग्जीक्यूटिव का रोल ज्यादा है। अगर एग्जीक्यूटिव का रोल ज्यादा है, वही तो हम अवॉइड करना चाहते थे। तो लोगों ने बोला यार ये तो गलत है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, दे हैव टू चेंज समथिंग, है ना। अब क्या है, वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स अनूप चंद्र पांडे, ही इज गोइंग टू रिटायर एंड सो हेंस अभी एक और बंदा अपॉइंट होगा, जिसका मतलब हमें एक और इंसान का नाम लर्न करना पड़ेगा। So meanwhile the news is that the Supreme Court refuses to stay the law on their appointment. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वाला लॉ जो है ये वैलिड है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम ही होता है लॉ बनाना, उस लॉ को इंटरप्रेट करने का काम होता है जुडिशरी का। सो जुडिशरी इज इंटरप्रेटेड, इट सेड इट्स ओके। सो दैट इज व्हाट द न्यूज इज ऑल अबाउट। इसके अलावा ऑफ कोर्स 25th ऑफ जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे। इसका थीम ऑफ 2024 आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, ओके। सो दैट इज दैट विद रिस्पेक्ट टू दिस। लेट्स गो अहेड। द नेक्स्ट वन इज विद रिस्पेक्ट टू रशिया। अब रशिया का क्या है ना, रशिया ये एस्टोनिया की जो प्राइम मिनिस्टर है, यू कैन सी हर ऑन योर स्क्रीन्स, इन्होंने वांटेड बोल दिया। सो एस्टोनियन प्राइम मिनिस्टर काजा कासल, शी इज द वन। कहते इसने क्या किया ना, बहुत सारे ऐसे वॉर मेमोरियल्स थे जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 के सोवियत सोल्जर्स जो थे उनके लिए वो वॉर मेमोरियल्स बनाए हुए थे, एंड दीज आर हिस्टोरिकल वॉर मेमोरियल्स, एंड शी वांट्स टू सॉर्ट ऑफ डिमोलिश देम, राइट, शी वांट्स टू डिस्ट्रॉय देम। तो एंड शी इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ यूक्रेन, so of course Russia doesn't like her. So Russia has put a foreign leader's name on a wanted list for the first time. रशिया के पास ये अथॉरिटी है कि वो ये कर सकता है, फॉरेन लीडर मतलब एट अ पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर को पहली बार ऐसा इन लोगों ने किया है। उसके बाद होगा क्या वो हम देख लेंगे, क्योंकि रशिया के साथ जिसकी भी लड़ाई होती है वो कहीं ना कहीं टॉल सी बिल्डिंग से कभी कभार जंप मार देते हैं, कभी कभार वॉलंटरीली वो पॉइजन खा लेते हैं। अच्छा, बीच में एक एयर क्रैश भी होने शुरू हो गए थे, राइट। सो आई डोंट नो, आई डोंट विश एनीथिंग बैड ऑन दिस लेडी, बट दिस इज एस्टोनिया। यू नीड टू नो द कैपिटल, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द करेंसी। ये दिस इज समथिंग दैट इज अ गिवन, ये तो करना ही है तुम लोगों को, ठीक है। दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, माने बहुत ही ईजी वाले क्वेश्चंस है, इनमें हमने गलती नहीं करनी है, तो इनको बार बार रटो, ठीक है, ओके। सो दैट इज दैट अबाउट दिस पर्टिकुलर वन। लेट्स गो अहेड। सो देयर दीज आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स, ठीक है। आईसीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, मेड इन 1909, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन इज ग्रेग बार्कले एंड जॉफ Allardyce. I don't know, I may have totally ruined his name, but he is the CEO. तो विमेन्स कैटेगरी में एमी हंटर, शी इज फ्रॉम आयरलैंड, एंड मेन्स कैटेगरी में शामर जोसेफ, ही इज फ्रॉम वेस्ट इंडीज, द वेरी फर्स्ट वन फ्रॉम वेस्ट इंडीज टू बी bestowed upon such an honor. Please learn the names, but because this is player of the month, इतना भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ठीक है, जस्ट कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड, क्या पता दोबारा से मिल जाए, बार बार मिले तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आई एम जस्ट पुटिंग इट अक्रॉस दैट देयर इज ऑल्सो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये दिस इज अ गुड न्यूज, इट्स अ वेरी प्रिकेरियस सी सिचुएशन वैसे। सो हुआ क्या है, सो देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन, हमने पहले भी बात की थी, कॉल्ड द यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग।
1912, Lausanne, Switzerland, Lalowitz, right? This is the organization. अपनी वाली का नाम क्या है? रेसलिंग फेडरेशन की क्या स्पेलिंग मैंने लिखी है, बहुत ही बढ़िया, राइट? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, 1967, न्यू दिल्ली. एंड संजय सिंह इज सस्पेंडेड. दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन. अब इन लोगों ने हम लोगों को बैन कर दिया था. बैन क्यों कर दिया था? बैन इसलिए किया था बिकॉज ब्रिजभूषण शरण, जिसके ऊपर अलेजिडली सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगे हैं, उसको हटा के इलेक्शंस करवानी थी टाइम पे, ताकि एक नया चेयरमैन आए. वो हुआ नहीं काफी देर तक. तो UWW इज लाइक हेल विद यू, तुम बैन हो गए हो. बैन हो गए हो का मतलब ये नहीं कि हमारे रेसलर्स इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे. वो कर रहे थे. कजाकिस्तान में जाके उन्होंने किया भी था, लेकिन नॉट अंडर द इंडियन फ्लैग. दे वर जस्ट लाइक देयर एंड दे वर पार्टिसिपेटिंग, बट दे वर नॉट अंडर द इंडियन फ्लैग. नाउ दैट दे हैव लिफ्टेड द बैन, now Indian athletes will be able to compete under the national flag internationally. So that's a very good thing. Precarious situation ये है कि WFI जो है, it is recognized by the world body पर suspended domestically. क्योंकि ये जो दूसरा बंदा आया है संजय सिंह, ये बहुत क्लोज है ब्रिजभूषण शरण के. And so साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, all of these wrestlers are like, यार ये बहुत ही ज्यादा मजाक हो गया कि मतलब उस बंदे से हमें प्रॉब्लम है, उसका अभी तक कुछ हुआ नहीं और उसके दोस्त को ही आपने चेयरमैन बना दिया. सो हेंस मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स हैज बेसिकली सस्पेंडेड हिम. सो दे आर सस्पेंडेड डोमेस्टिकली, recognized globally. Right, and then there are two conditions, by the way, that the United World Wrestling has placed upon the Wrestling Federation of India. Condition 1, they say don't discriminate against Vinesh Fogart, Sakshi Malik and Bajrang Punia. Bajrang Punia right now is training in Russia. Sakshi Malik sort of has said that I have retired, but well, hopefully we'll get to see her soon. And Vinesh Fogart की तो बात हमने अभी की थी, जहाँ पे national event में she's received a gold medal after a very long time because she was in the ring after a very long time. Condition 2 is elections of athletes commission. एंड कहते कैंडिडेट जो है इस एथलीट्स कमीशन का, वो एक एक्टिव एथलीट होना चाहिए या जिसको रिटायर होते हुए अभी तक 4 साल से ज्यादा नहीं हुआ है. तो ये दोनों चीजें बोला तुम करोगे, नहीं करोगे, डेडलाइन भी दे दी है, अगर नहीं करोगे तो फिर तो हम लोग तुम्हें फिर से बैन कर देंगे. तो ये मिस्टर संजय सिंह सेज, मैं पर्सनली इनको कॉल करके बुलाऊंगा. I don't know what's gonna happen, but that is what the news is all about. This is important for us, also a little interesting. Guys, this particular thing, sorry for this. Yeah, so cancel that out. वो पुरानी slide थी, but यही था कि राहा में जो operation है वहाँ पे like a lot of people are a lot of Palestinians are now, getting out of it. We've spoken about that operation that is being conducted by Israel. And because of the location of that particular area, which is on the border with Egypt, प्रॉब्लम ये आ जाएगी थोड़ी देर के बाद कि ना इजिप्ट उनको एक्सेप्ट कर रहा है, ना वो कहीं जाने लायक हैं. तो वहाँ पे अलेजिडली जेनोसाइड हो रहा है एंड साउथ अफ्रीका इज ऑलरेडी गॉन टू द ICJ विद रिस्पेक्ट टू द सेम. दे आर अगेन टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन. फाइनली MSP हमने बात की थी कल ही, दैट द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मेनी थिंग्स एंड अमंग्स देम बीइंग दे वांट अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ऑपोजिशन कह रही है हम दे देंगे, हमें इलेक्ट कर लो. रूलिंग पार्टी बोल रही है भाई बॉस स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन तो नहीं मिलेगा, बाकी बातें कर लो. ठीक है, तो इसमें इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन सेक्शन में एक आर्टिकल आया था जिसमें आई थॉट एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इन 2022 देयर वाज अ कमिटी दैट वाज मेड for 3 things, and the head of that committee is Sanjay Agrawal. It was notified obviously by the Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, obviously क्योंकि it is to do with farmers. 3 चीजों के बारे में इन्होंने करना था. एक तो है MSP, we have already discussed this, right? Please go and figure it out. ये तो easy है, minimum support price कितने में होता है, कौन इसको notify करता है, सब बात हुई है. नेचुरल फार्मिंग, जीरो कॉस्ट नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, जीरो कॉस्ट नेचुरल फार्मिंग. नाउ फर्स्टली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है. ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ये सब कुछ है. Zero cost natural farming is exactly what our ancestors used to do. They used to use cow dung, cow urine and jaggery, good, to increase the fertility of the land. And so we are trying to get back to that. But you have to understand the practical problem that a farmer will face is that the zameen respond जरूर करेगी, fertility भी आएगी, लेकिन वो
काफ़ी देर के बाद होगा, तब तक वो फार्मर करेगा क्या, राइट? सो दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम. एंड फाइनली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए क्योंकि HYV सीड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन ने मिट्टी प्लीत कर दी, लाइक क्वाइट लिटरली काफ़ी सारी ज़मीनों की. पंजाबियों का स्टेपल फूड इज़ नॉट राइस, बट पंजाब में राइस बहुत उगता है, विच इज़ अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप. ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ऊपर गारंटीड प्राइस मिलता है फार्मर्स को. वो फार्मर्स को ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे सरकार ने ही बोला था राइस उगाओ, अब इतना राइस उगा लिया कि वाटर टेबल बहुत ही नीचे चला गया. So now they're trying to indulge into, crop diversification, which is why last year, 2023 was termed as the International Year of the Millets, and many other things are happening. But chalo theek hai, let's see what happens with respect to this entire thing. And that is that from my side for the 14th of February 2024. Yes, so have a great time, and I'll see you guys tomorrow. Till then, keep studying hard, and like the video if you found it informative. And for more such informative videos, kindly subscribe to our channel. Thank you very much. Take care.